Hello guys, I welcome you all to the day 174 of our series, and in today's session we are going to explore a whole new arena of different categories of pronouns. So let's get started, and here is your yesterday's task. So let's have a look at it first. Here you were supposed to write both, neither or either in your statements. First is already answered here. Do you want tea or coffee? Either. I really don't mind. So next one is, what day is it today? The 18th or the 19th? And the answer is, it is 20th. Means neither. Neither. It is 20th. Next is, where did you go on your trip? Korea or Japan? We went to dash a week in Korea and a week in Japan. Means we went to both. We went to both. Next is, shall we sit in the corner or by the window? I don't mind. In that case, you have to go by either. Either, I don't mind. Next is, where is Lisa? Is she at work or at home? Dash, she's away on holiday. Means neither. She is neither at work nor at home. She is on holiday. Next is it true that Kate speaks Spanish and Arabic? Yes, she speaks dash fluently. She speaks both fluently. Now let's move to the next exercise, and here you are free to use of wherever required. First is already given here, both my parents are from Egypt. Next is, to get to the town center, you can walk along the river or you can go along the road. So here two options are given. So you can go dash way. You can go either way. You can go either way. Next is, I went to Carl's house twice, but dash times he wasn't at home. But both both times he wasn't at home. Or you can also say both of the times. Both of the times. Both are correct. Next is, dash Tom's parents is English. His father is Polish and his mother is Italian. So neither of Tom's parents is English. Next is, I saw an accident this morning. One car drove into the back of another. Fortunately, dash driver was injured. Fortunately, neither driver was injured. Next is, but dash cars were badly damaged. So you can say both. Both cars were badly damaged. Or you can also say both of the cars. Next is, I have two sisters and a brother. My brother is working, but dash my sisters are still at school. So both. Both my sister, or you can also say both of my sisters. Both cases are correct here. And now let's move to the next exercise, and here you were supposed to write either, neither, both, along with, of us or of them. So first is already answered here. I asked two people how to get to the station, but neither of them knew. Next is, I was invited to two parties last week, but I couldn't go to dash. So I couldn't go to either of them. Either of them. Or you can also use both of them. Both of them. But you cannot use neither of them because here not is given. It is making the sentence already negative. That's why we cannot use neither in the latter part of the statement. Next is, there were two windows in the room. It was very warm, so I opened both of them. Both of them. And next is, Sam and I often play tennis, but we are not very good. Dash can play well. We are not good in that case, neither. Neither can play well. And here we can use neither because the earlier statement is completed, is over here. We are not very good. यहाँ पे statement complete होगी. The next statement starts from neither can play well. Next is, I tried two bookshops for the book I wanted to buy, but dash had it. But neither of them had it. Well, in fourth sentence, you can also write neither of us.
This is also correct. Neither of us can play well. Now let's move to the next exercise. And here you were supposed to rewrite the sentences using these pairs. So now first and second are already answered here. Let's start with the third one. It was a boring movie. It was long too. So we can write it like this. The movie was both. The movie was both long, boring, and long. Now, next is Joe doesn't have a car. Sam doesn't have one either. We can say it like this. Neither Joe nor Sam, neither Joe nor Sam has a car. And if you have written have here because of considering these two subjects, in that case you are wrong. Here the helping verb will be singular. Next is Emily speaks German and she speaks Russian too. So we can say that Emily speaks both German and Russian. And next is Ben doesn't watch TV and he doesn't read newspapers. So you can say that Ben neither watches, you have to write es after this verb. Ben neither watches nor reads. Well, wait. Ben neither watches TV nor reads newspapers. Now this one is correct. So next is that man's name Richard or is it Robert? It is one of the two. So you can say that man's name is either Richard or Robert. Next is I don't have time to go on holiday and I don't have the money. So I have neither time nor money to go on holiday. And last one is we can leave today or we can leave tomorrow, whichever you prefer. So we can leave either today or tomorrow. Now let's move to our last exercise, and here you were supposed to write none or any if the number is more than 2, and if it is 2 then you can put neither or either as your answer. First is already answered because a lot of hotels is mentioned here, that's why we have written none here. Next is Sam has 2 sisters but I haven't met either of them. You cannot put neither here because not is already given in the statement. Next is Emily has 4 brothers but I haven't met dash of them. Here the counting is 4, that's why we have to use between none or any. And here because not is already given, that's why we cannot use none here. So our answer will be any of them. Next is there were a few shops in the street but dash of them was open. For a few we have to choose between none or any. So but none of them was open. Next is Spain, Italy, Greece, Turkey. Have you been to dash of these countries? Have you been to any of these countries? Next is I could meet you next Monday or Thursday. Would dash of those days suit you? Would either of those days. And last one is Mark and I couldn't get into the house because dash of us had a key. We couldn't get into house, that means neither of us had a key. So this was your yesterday's task. Now let's move to the pronouns part. We have already done these pronouns, and
In today's session, we are going to complete indefinite pronouns as well as the pronoun one. So now let's get started. Well, the pairing of these pronouns, we have already done this part, but here is your task. Now pause the screen and tell me which one of the statements is true, is correct, is grammatically correct. So I hope by now you have analyzed that none of the statements is correct. कोई भी इनमें से correct नहीं है और reason ये है, see, either is paired with or and neither is paired with nor. But only the pairing is not enough. सिर्फ pairing करना ही काफी नहीं है, हमें कुछ और चीजें भी हैं जिनको ध्यान में रखना है. And here comes the concept of parallelism. Parallelism, as its name suggests, जैसे कि इसके नाम से हमें लग रहा है कि पैरेलल रखना होता है हमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को. जैसे एंड गिवन है यहाँ पे, खैर यहाँ पेयरिंग की बात है तो मैं कोई पेयर्ड ही लेती हूँ यहाँ पे, पेयर्ड कंजंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, not only dash and but also dash. Let's say this is given in our statement. Now what we have to do, that if a noun is written after not only, in that case we have to put noun, another kind of noun after but also. We cannot put any kind of verb or adjective in the latter part of the statement. मीन्स अगर नॉट ओनली के बाद में हमें यहाँ ब्लैंक में अगर नाउन गिवन है कोई, तो बट ऑल्सो के बाद में भी हमें नाउन को ही लगाना पड़ेगा. हम वहां पे वर्ब या एडजेक्टिव नहीं लगा सकते बाद वाले पार्ट में सेंटेंस के, क्योंकि हमें पैरेलल रखना है दोनों स्ट्रक्चर्स को ग्रामेटिकली. हमें इक्वालिटी मेंटेन करके रखनी है, सिमिलैरिटी रखनी है हमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स में. और इसी तरह से यहाँ पे वर्ब अगर गिवन है तो बट ऑल्सो के बाद वाले ब्लैंक में भी हम वर्ब को ही पुट करेंगे, सॉरी. और यहाँ अगर वर्ब भी ing structure, means if our verb is given in gerund structure after not only, then we have to put the gerund structure after but also. इसके बाद में भी हमें gerund structure को ही यहाँ यूज करना होगा. अगर not only के बाद में जो verb है infinitive structure में given है 2 plus v1, तो but also के बाद में भी हमें 2 plus v1 को ही put करना पड़ेगा to maintain the equality, to maintain the similarity in both of the structures. और इसी तरह से अगर यहाँ पे सिंपल वर्ब गिवन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे भी हमें वही यूज करना पड़ेगा. एडजेक्टिव अगर कोई गिवन है तो वही हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. आर्टिकल गिवन है वही हमें बाद वाले पार्ट में यूज करना होगा. तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा पैरेललिज्म का. और ये क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो इस पेयर पे काम कर रहा है, इस पेयर पे एप्लीकेबल है, इन दैट केस दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ ईदर और एंड नीदर और. इन दोनों के केस में भी ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है. यानी ईदर के बाद में अगर कोई ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ स्पीच आ रहा है, यहाँ पे लेट्स से नाउन आ रहा है, तो और के बाद में भी हमें नाउन ही लगाना होगा, तभी जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा. अब आते एग्जाम्पल्स पे. We were told to rescue the staff either or to find new customers. अब यहाँ पे देखिए हमें इस सेंटेंस से ये मीनिंग निकल के आ रहा है, we were told to reduce, कि हमें कहा गया था to reduce the staff, कि स्टाफ को कम करो और इसके साथ साथ नए कस्टमर्स को भी फाइंड करो. तो अब यहाँ देखिए either to reduce the staff or to find new customers. अब यहाँ देखिए either के बाद में 2 plus v1 इंफिनिटिव स्ट्रक्चर गिवन है, सिमिलरली और के बाद में भी 2 plus v1 to find इंफिनिटिव स्ट्रक्चर हमने यूज कर दिया. यानी कि अब ये जो स्ट्रक्चर है ये करेक्ट है. तो अब देखिए यहाँ पे we were told either to reduce the staff or to find new customers. इस तरह से सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा. यानी कि इनके तुरंत बाद हमें मेंटेन रखना है इक्वालिटी को. अब जैसे नेक्स्ट है we were either told. अब देखिए यहाँ either के बाद में told given है, सिंपल first form of the verb is given, but after to the infinitive structure of verb is given, means 2 plus v1 given है यहाँ पे, तो इस वजह से सेकंड भी इनकरेक्ट हो गया. थर्ड में देखिए we were told to reduce either the staff, और यहाँ पे और के बाद में वर्ब दे दी और either के बाद में आर्टिकल के साथ में हमें नाउन दे दिया गया है, तो इस वजह से ये भी इनकरेक्ट है. तो एक ही करेक्ट वर्जन होगा इसका, एंड दैट इज we were told to
We were told either to reduce the staff or to find new customers. अब यहाँ देखिए ये तीनों गलत वर्जन थे. अब यहाँ देखिए करेक्ट वर्जन ये है. We were told to either reduce. आप इस तरह से भी कर सकते हो. We were told to either reduce or find new customers. अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में क्या किया है ये डिफरेंस है. We were told, अभी हमने क्या था, we were told either to reduce the staff or to find new customers. अब यहाँ हमने इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए ईदर के बाद में भी इन्फिनेटिव को यूज किया और के बाद में भी इन्फिनेटिव को यूज किया. 2 बार हमने यूज किया. इस स्टेटमेंट में इसको इस तरह से भी करेक्ट कर सकते हैं कि हमने इन दोनों के ही केस में जो टू आ रहा था इसको पहले ही ले गए, हम इसको कॉमन ले लिया, हमने इसको टोल्ड टू. अब एक बार यहाँ पे टू लगा दिया, अब 2 बार हमें यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं है, तो इस वजह से अब दोनों जगह से हमने टू को हटा दिया. टोल्ड टू ईदर रिड्यूस द स्टाफ और फाइंड न्यू कस्टमर्स. तो किसी भी तरह से आप कर सकते हो, बस आपको इक्वालिटी सिमिलैरिटी मेंटेन करके चलना है. नेक्स्ट में आते हैं नीदर नोर का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं. एग्नेस वाज नीदर गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू क्लासेस, नॉर डूइंग हर असाइनमेंट. यहाँ पे गोइंग यानी कि आईएनजी स्ट्रक्चर, जर्न स्ट्रक्चर, नॉर के बाद में डूइंग अगेन आईएनजी स्ट्रक्चर को यूज किया गया है. कुछ और एग्जांपल्स को देख लेते हैं. तो यहाँ देखिए ये हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस की थी और यहाँ पे देखिए नीदर नाउन क्रिस नोर पॉल. पॉल इज ऑल्सो अ नाउन हियर. नीदर के बाद में भी नोर के बाद में भी दोनों के बाद में हमने नाउन को यूज किया. नेक्स्ट में बट वी नीदर सो नोर हर्ड एनीथिंग. नीदर के बाद में वी टू सी सॉ सीन और सिमिलरली नोर के बाद में भी यहाँ पे वी टू को यूज किया गया था, हियर हर्ड हर्ड. तो यहाँ पे भी मेंटेन करके रखा था हमने पैरेललिज्म के कॉन्सेप्ट को. ईदर के केस में देख लेते हैं. ईदर स्पेनिश और इटालियन. ईदर के बाद में एडजेक्टिव स्पेनिश और के बाद में भी इटालियन एडजेक्टिव हो गया. यहाँ पे ईदर यू अपोलोजाइज और आई विल नेवर मीन्स ईदर के बाद में यहाँ पे प्रोनाउन उसके बाद में वर्ब. तो और के बाद में भी आई प्रोनाउन है, उसके बाद में विल वर्ब दे रखी है. फिर से मेंटेन किया हमने यहाँ पे पैरेललिज्म के कॉन्सेप्ट को. यहाँ देखिए कुछ और एग्जांपल्स हैं. अब जैसे ये गिवन है यू आर ईदर फॉर अस और यू आर अगेंस्ट अस. या तो तुम हमारे साथ हो या तुम हमारे खिलाफ हो, ये मीनिंग हो गया इसका. अब देखिए ईदर के बाद में है फॉर अस, फॉर प्रपोजिशन है हमारी यहाँ पे, और के बाद में हम यू को यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं, उसके बाद में वर्ब को, जबकि इससे पहले हमने यूज किया है यहाँ पे प्रपोजिशन को. तो ये फॉल्टी पैरेललिज्म का केस हो गया हमारा. 2 तरह से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट तो ये देखो ईदर के बाद में फॉर अस आ रहा है, प्रपोजिशन आ रही है, तो और के बाद में भी हमें प्रपोजिशन ही चाहिए. अगेंस्ट प्रपोजिशन होती है, अगेंस्ट, अबव, बिलो, टुगेदर, ये सारी है ना हमारी प्रपोजिशंस भी होती हैं. तो अब देखिए यू आर ईदर फॉर अस और अगेंस्ट अस. अब यहाँ पे हो गई सिमिलैरिटी, ईदर फॉर और अगेंस्ट. या फिर इसको ऐसे भी किया जा सकता है, ईदर को आप स्टार्टिंग में ही ले आइए, तो ये हो जाएगा ईदर यू आर फॉर अस और यू आर अगेंस्ट अस. फिर से मेंटेन कर लिया हमने सिमिलर स्ट्रक्चर को. नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं. मैरी इज नीदर अ डेमोक्रेट नॉर इज शी अ रिपब्लिकन. अब यहाँ पे नीदर के बाद में अ डेमोक्रेट नाउन गिवन है, अब आर्टिकल प्लस नाउन गिवन है. नॉर के बाद में इज शी अ रिपब्लिकन. अब यहाँ पे बीच में वर्ब, प्रोनाउन, ये सारी चीजें आ गई, तो इक्वल नहीं हुआ स्ट्रक्चर, तो फॉल्टी में आ गया. इसको करेक्ट हम इस तरह से कर सकते हैं, मैरी इज नीदर अ डेमोक्रेट नॉर अ रिपब्लिकन. अब इक्वल हो गया. या फिर इस तरह से भी किया जा सकता है, neither is Mary a Democrat nor is she a Republican. ये भी हम कर सकते थे. नेक्स्ट में आते हैं. Neither Norway nor Switzerland is in the European Union. अब यहाँ पे neither noun nor noun, इक्वालिटी मेंटेन की गई है. अगेन marriage is neither heaven nor hell. neither के बाद में भी heaven और nor के बाद में hell, यानी कि यहाँ पे फिर से दोनों के बाद में नाउन को यूज किया गया है. इट इज सिंपली परगेटरी. परगेटरी का मीनिंग हो जाता है
having the quality of cleansing and purifying. मीन्स क्लेंस करने की क्वालिटी रखना, प्योरीफाई करने की क्वालिटी रखना, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं पर्गेटरी। अब ये आपके लिए एक्सरसाइज है, जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीन को पॉज कीजिए और इनमें जितने भी आपको लग रहे हैं फॉल्टी पैरेललिज्म के केस सबको करेक्ट कीजिए। और ये भी हो सकता है कोई स्टेटमेंट पहले से करेक्ट हो, इनकरेक्ट मत कर देना। सो आई एम श्योर आपने कर लिए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज शी विल टेक ईदर द बस और राइड हर बाइक। शी विल ईदर टेक द बस और राइड हर बाइक। ईदर को पहले ले आओ, टेक को बाद में ले जाओ। शी विल ईदर टेक वर्ब थी हमारे यहाँ पे, और राइड भी हमारे यहाँ पे वर्ब थी। ईदर टेक और राइड। नेक्स्ट है द चॉकलेट मिल्क इज नीदर हॉट और कोल्ड। द पेयरिंग ऑफ नीदर इज ऑलवेज डन विद नॉर। नॉर के साथ में पेयरिंग होती है ये हमेशा, नीदर और नहीं होगा कभी भी। नेक्स्ट है माई कीज आर ऑन माई डेस्क ईदर और इन माई पॉकेट, कॉट पॉकेट। अब यहाँ देखिए और इन माई कॉट पॉकेट, तो इसी तरह से होगा ईदर यहाँ पे प्लेस करोगे आप, ईदर ऑन माई डेस्क और इन माई कॉट पॉकेट, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है द कैंडिडेट हु मिस्ड द अपॉइंटमेंट नीदर कॉल्ड और ईमेल टू एक्सप्लेन हिज एब्सेंस। अगेन द मिस्टेक ऑफ इनकरेक्ट पेयरिंग, नीदर के साथ में नोर की पेयरिंग होगी। अब देखिए नीदर कॉल्ड, नीदर के बाद में वर्ब पास्ट फॉर्म में गिवन है V2। सिमिलरली और ईमेल्ड, अब ईमेल्ड इसको भी एज अ वर्ब यूज किया गया है, पास्ट वर्ब, तो अब ये करेक्ट है। लास्ट वन इज इट इज माई फाइनल ऑफर, यू ईदर कैन टेक इट और लीव इट। अब यहाँ देखिए यू कैन को आप यहाँ ले आइए, ईदर को यहाँ ले जाइए। यू कैन ईदर टेक इट और लीव इट, तब जाके इक्वल होगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे देखोगे यू कैन, यू ईदर कैन, ईदर के बाद में यहाँ पे वर्ब गिवन है और लीव, खैर ये भी ऑलमोस्ट करेक्ट ही माना जाएगा। लेकिन अगर आपने इस तरह से किया है दैट यू कैन ईदर टेक इट और लीव इट, तो भी करेक्ट है। नेक्स्ट में आते हैं द केस ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी तक हमने देखा करेक्ट पेयरिंग को कि नीदर की सिर्फ नॉर के साथ में होगी, और के साथ में नहीं होगी। उसके बाद में हमने देखा पैरेललिज्म के कॉन्सेप्ट को कि हमें पैरेलल स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करके रखना है। अब कॉन्सेप्ट आ रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब पुट करनी है। वर्ब हम सिंगुलर करेंगे या प्लूरल, ये डिसाइड करना है। अब यहाँ टफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो सब्जेक्ट्स होंगे। अब जैसे यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल में नीदर द मैनेजर, so our first subject here is manager, next is nor his assistant, and our second subject here is assistant. अब प्रॉब्लम ये है कि वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग यूज करें, मैनेजर के अकॉर्डिंग या असिस्टेंट के अकॉर्डिंग, या दोनों को मिला के हम यूज करें। कि दोनों को मिला के अगर हम यूज करें तो यहाँ प्लूरल होनी चाहिए, क्योंकि दो लोग हैं वहाँ पे, एक मैनेजर है एक असिस्टेंट है, दोनों को मिला देंगे तो यहाँ आर होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ देखिए इनके केस में ऐसा नहीं होता, नीदर नोर, ईदर और यहाँ पे मैं इसको और ले रही हूँ, नॉट ओनली को, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसके केस को भी मैं यहाँ ले रही हूँ। तो इन सब में ही जो वर्ब है, वर्ब एग्री करती है, वर्ब एग्रीज with the, let me correct the spelling of with, so verb agrees with the nearest subject, so whichever subject is nearest to the verb agrees with that same subject। यानी कि अब यहाँ पे देखिए is यहाँ वर्ब है हमारी और ये दो सब्जेक्ट्स हो गई। अब वर्ब के क्लोज कौन सा सब्जेक्ट है, अब देखिए इसके पास में हिज असिस्टेंट है, क्योंकि मैनेजर वाला तो इससे दूर हो गया, तो हिज असिस्टेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ वर्ब लगाएंगे। तो हिज असिस्टेंट, क्योंकि एक है ये सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पे इज यूज कर दिया और ये स्टेटमेंट करेक्ट है अपने आप में। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट का केस देखिए, नीदर द मैनेजर nor his assistants are here today।
अब यहाँ ये है हमारी वर्ब आर। वर्ब के पास में कौन सा सब्जेक्ट है इनमें? अब ऑब्वियसली वर्ब के पास में वर्ब के क्लोज तो यही है हिज असिस्टेंट्स, और हिज असिस्टेंट्स क्योंकि ये प्लूरल था तो हमने वर्ब को भी प्लूरल ही यूज किया है, आर हियर टुडे। So it doesn't matter whichever is our first subject because verb always agrees with the nearest subject. हमेशा ही नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ में वर्ब एग्री करेगी। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रही कि सेकंड सब्जेक्ट के साथ में करेगी ना, नियरेस्ट, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के केस में फिर सेकंड के साथ में डिसएग्री हो जाएगा मींस। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, नीदर, एन से हो जाएगा नोर, और एन से ही हो जाएगा नियरेस्ट। तो ट्रिपल एन, इसको आप याद रख लेना, यानी नीदर नोर के केस में जो वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ में एग्री करेगी। तो नीदर नोर का आपको याद रहेगा, ईदर और का भी रह जाएगा, और दो पेयर से याद रहेंगे तो थर्ड पेयर भी आप याद रख लोगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो का केस। अब आपके लिए एक्सरसाइज है, जल्दी से फिर से स्क्रीन को पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए इस एक्सरसाइज को। आई एम श्योर आपने कर लिया होगा, तो चलिए आंसर्स पे आते हैं। फर्स्ट है ईदर द बेयर्स और द लायन डैश एस्केप्ड फ्रॉम द जू। नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? अब यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के पास में लायन है या द बेयर्स है? अब ऑब्वियसली इसके क्लोज में तो यही है ना, द लायन। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, हैज हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और द लायन हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जू। नेक्स्ट है नीदर द लायन नॉर द बेयर्स हैव और हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जू। अब यहाँ पे देखिए द बेयर्स, अब ये प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हैव लगा देंगे। नीदर द एम्प्लॉयज नॉर द बॉस, अब यहाँ वर्ब है हमारी, वर्ब के क्लॉज ये गिवन है द बॉस, तो इस वजह से यहाँ पे द बॉस क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, was at work. Neither the employees nor the boss was at work. अब यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि एम्प्लॉयज प्लूरल है, इसको हमें देखना ही नहीं है, हमें नियरेस्ट को ही देखना है, दैट्स इट। नेक्स्ट इज नीदर सुजैन नॉर हर फ्रेंड्स डैश गोइंग टू द पार्टी tonight. It's about tonight. In that case, you have to go with is MR. So her friends, for her friends, you have to use are going to the party, not with Suzanne. Next is neither the plates nor the serving bowl dash on the shelf. अब यहाँ पे मेन वर्ब है, लास्ट वाले दोनों एग्जाम्पल्स में चारों में ही हमारे मेन वर्ब गिवन है। तो मेन वर्ब के केस में if you have forgotten in that case, let me remind you again. So main verb always takes s, es or ies with it if we are using it in singular format, and if we are using in it plural format, in that case you have to write the base form of the verb, means go, ये as it is रहेगी, ये plural form है और singular में हमें s, es या ies को use करना होता है। तो यहाँ देखिए neither the plates nor the serving bowl, अब यहाँ पास में क्या है इसके वर्ब के, the serving bowl singular, that's why we have to use go, goes, not go, goes, क्योंकि हमें singular verb चाहिए थी यहाँ पे। neither the plates nor the serving bowl goes on that shelf. next में यहाँ पे plates given है, तो ये subject plural है हमारा यहाँ, तो plural verb चाहिए, हो जाएगा go on that shelf। अब ये करेक्ट है। नेक्स्ट में आते हैं either my brother or my mom dash after our cat when we are away on holiday, कि ओके लुक आफ्टर, कि हाँ वो केयर करती है हमारी कैट की जब हम बाहर होते हैं छुट्टियों पे कहीं पे भी। तो अब यहाँ देखिए दो हैं, माई ब्रदर और माई मम। खैर यहाँ पे तो दोनों ही सिंगुलर हैं, दैट मीन्स सिंगुलर वर्ब ही रहेगी हमारी यहाँ, क्योंकि क्लोजर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो ये हो जाएगा लुक्स आफ्टर आवर कैट। यहाँ हमारा आंसर है लुक्स आफ्टर। नेक्स्ट में आते हैं either my brother or my parents dash after our cat। अब यहाँ पे my parents ये क्लोज है हमारी वर्ब के, तो इस वजह से लुक को हम यहाँ पे चूज करेंगे, प्लूरल वर्ब हमें चाहिए यहाँ पे। either my brother or my parents look after our cat when we are away on holiday। तो आई एम श्योर अब इससे रिलेटेड तो जितने भी आपके कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए होंगे सारे। तो अभी वोकैबुलरी पार्ट पे आते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने ये सारे वर्ड्स कर लिए थे, इन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे अभी। और नेक्स्ट वर्ड है कोहेरेंट, या फिर इसको कोहेरेंट भी कह सकते हैं हम। कोहेरेंट
और इसका मीनिंग हो जाता है कि इस तरह से लिखना कि वो एक पूरा प्रॉपर फ्लो मेंटेन हो जाए, यानी कि पॉइंट्स जो हैं वो लॉजिकली अरेंज हो जाएं अच्छे से। ईच पार्ट ऑफ इट कनेक्ट्स और फ्लॉज इन अ नेचुरल और रीजनेबल वे। यानी कि आपको अगर 5 पॉइंट्स कहने हैं तो उन पांचों को एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको मेंटेन करना है, इस सीक्वेंस में कि सारे लॉजिकल लगे, रेशनल लगे सारे। तो यहाँ देखिए, ऑफ राइटिंग की बात हो रही है। ऑब्वियसली राइटिंग के केस में इसका मीनिंग हो जाता है क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिबल। कॉम्प्रिहेंसिबल मीन्स अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबल, कॉम्प्रिहेंसिबल। आपने सुना है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मीन्स पढ़ के उसको समझना, तो वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन वही होता है समझना। नेक्स्ट है विद ईच पार्ट फॉलोइंग ऑन लॉजिकली फ्रॉम द वन बिफोर, यानी कि पहले वाले पार्ट के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोई घटना हुई है और वहां पे हमें एक पैसेज लिखना है, और उस घटना में ये है कि एक 13 को हुई है, एक पार्ट उस घटना का 13 को हुआ, एक 14 को हुआ है, एक 15 को हुआ है। इस तरह से ये इवेंट्स हुए हैं उस पूरे उसमें सिचुएशन के दौरान। तो अब हम इनको लिखेंगे, तो अब इनको इसी तरह से हम लिखेंगे कि 13 के बारे में हम पहले बात करेंगे, फिर हम 14 डेट को जो हुआ उसके बारे में बात करेंगे, फिर 15 को। तो ये है एक कोहेरेंट स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आप ऐसे कहते हो पहले हमने 15 की बात कर दी, फिर हमने यहाँ 13 की बात की है, फिर हमने 14 की है, तो ये नहीं होगा कोहेरेंट। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। कोहेरेंट ये हमारा एडजेक्टिव है, और इसका ऑपोजिट ऑब्वियसली इन लग जाता है, इनकोहेरेंट। और कोहेरेंस सीई, ये हमारा हो जाएगा नाउन। नेक्स्ट में आते हैं कमांड ऑफ समथिंग। कमांड यानी कि किसी भी चीज के बारे में अच्छे से पता होना, अच्छे से उसकी नॉलेज होना, यानी उसके ऊपर, उस चीज के ऊपर कमांड होना, अच्छी कमांड होना। तो इसके लिए आप एक और इडियम भी यूज कर सकते हो, एंड दैट इज टू हैव अ नैक। टू हैव अ नैक ऑफ, या फिर फॉर, दोनों का भी यूज कर सकते हो, ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन की डांसिंग पे अच्छी कमांड है, उसको डांस बहुत अच्छे से आता है, डांसिंग के बारे में काफी नॉलेज है, तो हम ये यूज कर सकते हैं दैट दैट पर्सन हैज अ नैक फॉर डांसिंग। नेक्स्ट है स्टाइलिस्टिक। स्टाइलिस्टिक साहित्य शैली संबंधी। तो एक्चुअल में इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे डिफरेंट राइटर्स होते हैं, उन सभी का स्टाइल डिफरेंट होता है लिखने का। अगर आप उठा के देखोगे, आप शेक्सपियर की वर्क्स को पढ़ोगे, उनकी रचनाओं को पढ़ोगे, उसमें आपको डिफरेंट चीजें मिलेंगी, एक डिफरेंट पैटर्न मिलेगा जिसपे वो बंदा लिखता था। और अगर आप थॉमस हार्डी की किसी भी रचना को उठा के देखोगे, तो आपको उनका जो वर्क है वो डिफरेंट मिलेगा। तो इन दोनों के राइटिंग स्टाइल्स हैं, ये डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स हैं, तो वहीं से ये वर्ड निकला है स्टाइलिस्टिक। नेक्स्ट है रजिस्टर। अब रजिस्टर के अगर आप चेक करोगे, अगर आप सर्च करोगे, बहुत सारे मीनिंग्स हैं रजिस्टर के। रजिस्टर इज यूज्ड एज अ नाउन एज वेल एज अ वर्ब, यानी कि दोनों तरह से इसको यूज किया जाता है, नाउन और वर्ब की तरह से। यहाँ पे क्योंकि हम एकेडमिक इंग्लिश यानी कि राइटिंग की बात करें स्पेसिफिकली, तो इसमें रजिस्टर का मीनिंग हो जाता है टू एक्सप्रेस और कन्वे। किसी भी इमोशन को या अपने ओपिनियन को सामने वाले तक पहुंचा पाना, एक्सप्रेस कर पाना, या फिर उसके लिए हम ये वर्ब यूज करते हैं रजिस्टर। एंड लास्ट वर्ड इज नैरेटिव। नैरेटिव होता है कि नरेट, ये बना है नरेट से, ये बना है नरेट से। नरेट यानी कि बताना किसी को, कोई भी घटना है, अकरेंस, हैपनिंग, कुछ भी है, वो बताना दूसरे को, यानी कि नरेट करना, ये मीनिंग हो जाएगा। नैरेटिव कि उसका बताया हुआ वो पूरा डिस्क्रिप्शन, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं नैरेटिव। और वो किसी भी तरह से हो सकता है वो बोल के बताए, हो सकता है नॉवल में उसने लिखा हो, वो कोई और पढ़े, यानी कि पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया एक इवेंट्स का। और जो पर्सन बताता है उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं नैरेटर। नेक्स्ट है हमारा वर्ड प्रेजेंट। देखिए प्रेजेंट ये एज अ नाउन भी यूज हो सकता है। प्रेजेंट को एज अ नाउन हम यूज करेंगे, इन दैट केस इट्स मीनिंग वुड बी गिफ्ट। प्रेजेंट यानी कि गिफ्ट, बर्थडे प्रेजेंट यानी बर्थडे गिफ्ट, एज अ नाउन अगर यूज होगा तो। इफ वी आर यूजिंग इट एज अ वर्ब, दैट मीन्स कहीं पे मौजूद रहना, किसी समय पे कहीं पे मौजूद रहना, प्रेजेंट होना,
वो प्रेजेंट एब्सेंट वाला केस, तो एज अ वर्ब ये हो गया। एज अन, अच्छा इसका एक और नाउन भी बन सकता है बाय एडिंग TION at the end of this word। प्रेजेंट से बन जाएगा प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन का मीनिंग तो आपको खैर पता ही है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, आई एम प्रेजेंटिंग द न्यू प्रोडक्ट। आई एम प्रेजेंटिंग यानी कि मैं अभी प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये पेश कर रहा हूँ, प्रेजेंटिंग हो गया। ही डिडंट प्रेजेंट हिज आइडियाज वेरी कोहेरेंटली इन हिज एसे। उसने अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया अपने आइडियाज, अच्छे से रखे नहीं सामने, कन्वे नहीं कर पाए वो अपने आइडियाज। तो इस तरह से ये सारे मीनिंग्स होते हैं प्रेजेंट के। अब आते हैं हमारे पैसेज पे। अब यहाँ पे वो कैब भी होगी जो हमने प्रीवियस सेशन में की थी। फर्स्ट है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सम पब्लिक एग्जामिनेशंस in English consist of a written paper in which candidates are required to produce a piece of discursive writing। कि कुछ पब्लिक एग्जामिनेशंस जो हैं वो इंग्लिश का पेपर भी कंडक्ट करवाते हैं, उसमें इंग्लिश का पेपर भी होता है रिटर्न। तो उसमें कैंडिडेट्स को काफी डिस्कर्सिव राइटिंग को यूज करना होता है, यानी कि डिस्कशन ओरिएंटेड, डिस्कशन बेस्ड राइटिंग को प्रेजेंट करना होता है। दे मे बी आस्क्ड टू प्रेजेंट एंड डेवलप एन आर्ग्यूमेंट। उनसे हो सकता है ये कहा जाए कि कोई आर्ग्यूमेंट यानी कि कोई रीजन, किसी चीज का आप रीजन रखिए सामने, फैक्ट रखिए। इवेलुएट आइडियाज, आइडियाज को आप इवेलुएट कीजिए, यानी कि इवेलुएट यानी कि मूल्यांकन कीजिए उन आइडियाज का, एनालाइज कीजिए उन आइडियाज को। समराइज कि मेन जो पॉइंट्स हैं इन्फॉर्मेशन के, उन्हीं को सिर्फ गैदर करके लिखिए आप अलग से, एटसेट्रा। कैंडिडेट्स आर असेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया। और जो कैंडिडेट्स हैं उनको इवेलुएट किया जाता है, उनका भी मूल्यांकन किया जाता है बहुत सारे डिफरेंट क्राइटेरिया, बहुत सारे डिफरेंट बेसिस पे, बहुत सारे डिफरेंट ग्राउंड्स पे, इंक्लूडिंग देयर एबिलिटी टू राइट इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड कोहेरेंट वे। और इसमें ये एबिलिटी भी शामिल होती है उनकी कि वो अच्छे से एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में लिख पा रहे हैं, कोई ऐसे वगैरह हो गया, कोई एप्लीकेशन लेटर हो गया, उनको एक कोहेरेंट वे में लिख पा रहे हैं या नहीं। देयर कमांड ऑफ अ रेंज ऑफ स्टाइलिस्टिक फीचर एंड देयर एबिलिटी टू राइट इन एप्रोप्रिएट रजिस्टर। अब देखिए, और इनके अलावा ये भी उनकी चेक होती है उनकी कमांड ऑफ अ रेंज, यानी कि उनकी कितनी कमांड है, वो कितना जानते हैं, कितनी नॉलेज है उनको उस चीज के बारे में जिसके बारे में वो लिख रहे हैं। ऑफ स्टाइलिस्टिक फीचर कि उनका प्रॉपर स्टाइल क्या है, किस तरह से लिख रहे हैं वो। एंड देयर एबिलिटी टू राइट इन एन अप्रोप्रिएट रजिस्टर इन अप्रोप्रिएट मैनर। नेक्स्ट है, सम टास्क में ऑल्सो इन्वॉल्व द यूज ऑफ नैरेटिव। हो सकता है कहीं पे मीन्स उनको एक नैरेटिव इसको शैली को यूज करना पड़े, जैसे एक नैरेटर अपनी कहानी को कहता है उसको उन्हें यूज करना पड़े। तो ये हमारा पैसेज था एंड दिस विल बी योर टास्क। सो गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग।